Hello students, today we are going to learn the most important topic, treatment of goodwill in the chapter admission of partners. So students, there are three methods of treatment of goodwill. Treatment of goodwill. What are these three methods? The first one is premium method. The second one is revaluation method. And the third one is memorandum revaluation method. The premium method is used when new partner brings his share of goodwill. The revaluation method and memorandum method are used when new partner is unable to bring his share of goodwill. So students, let's discuss these methods. So students, let us discuss premium method. When new partner brings his share of goodwill. What are the journal entries? Bank account debit to premium of goodwill. Goodwill account debit to all the partners. In which ratio? Sacrificing ratio. देखिए, न्यू पार्टनर गुडविल लाया है कैश में या कैश में बैंक से, तो बैंक तो प्रीमियम ऑफ गुडविल, जो गुडविल है वो ओल्ड पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट की जाएगी सैक्रिफाइसिंग रेशियो में। सैक्रिफाइसिंग रेशियो में क्यों? क्योंकि जब
कोई न्यू पार्टनर का एडमिशन होता है तो नए पार्टनर प्रॉफिट का कुछ हिस्सा सैक्रिफाइस करते हैं, उसी रेशियो में वो गुडविल को बांट लेंगे। जैसे मान लीजिए ए और बी दो पार्टनर्स थे, मान लीजिए लेट्स से इनको 12 रुपीज का प्रॉफिट होता है, 1:1 के लिए ये पार्टनर्स थे, ये 600 रुपए आपस में बांट लेते थे, लेकिन अब सी भी आ गया, ठीक है, ए बी सी, अभी भी इनका रेशियो 1:1 है, इक्वल रेशियो है, लेकिन प्रॉफिट 12 रुपए ही है, तो अभी कितना बटेगा 4, 4 एंड 4, तो इसको 2 रुपीज का लॉस हुआ, इसको 2 रुपीज का लॉस हुआ, इसको 2 रुपीज का गेन हुआ, 2 रुपीज का गेन हुआ, वही तो जाके इसका 4 रुपीज बना। तो जब इनको सैक्रिफाइस करना पड़ा अपना 2 रुपीज, क्योंकि पहले 6 था अब 4 हो गया, तो 2 रुपीज इनको सैक्रिफाइस करना पड़ा, उसी रेशियो में ये गुडविल को डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। Let us see an illustration of premium method. A and B are partners sharing profit and losses in the ratio 3:2. They admit C and new profit sharing ratio becomes 3:2:1. She brings rupees 1 lakh as capital and rupees 40,000 as his share of goodwill. In this illustration, A and B are partners sharing profit and losses in the ratio 3:2. C को एडमिट किया गया है, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना हो गया 3:2:1. C 1 lakh एज ए कैपिटल ला रहा है एंड 40,000 एज ए शेयर ऑफ गुडविल ला रहा है। जरा ध्यान दो बच्चों, यहाँ पर C अपना शेयर लेकर आ रहा है गुडविल का। We use premium method. The first entry of bringing capital, bank account debit to C's capital account, that is 1 lakh. Again, bank account debit to premium for goodwill. C brings his share of capital. How much? 40,000. Let's write premium for goodwill account debit. Premium for goodwill account debit to A's capital account. जो सी गुडविल लाया है उसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा ओल्ड पार्टनर्स में सैक्रिफाइसिंग रेशियो में।
Now we have to calculate sacrificing ratio. A ratio B. What is the old ratio? 3:2. New ratio 3:2:1. Sacrificing ratio of A. Old ratio minus new ratio. 3/5 minus 3/6. 30. 5 6 the 30. 18. 6 5 the 30. 15. We get 3/30. Sacrificing ratio of B. 2/5 minus 2/6. LCM is 30. 5 6 the 30. 12. 6 5 the 30. 10. 2/30. Sacrificing ratio 3:2. So share goodwill in the ratio of 3:2. A share 40,000 into 3/5, 24,000. B share into 2/5, 16,000. 40,000, 24,000 and 16,000. This is the premium method when partner brings his share of goodwill. Now let us discuss about the revaluation method when new partner is unable to bring his share of goodwill the journal entries are bank to goodwill and goodwill to old partners. In what ratio? Again sacrificing ratio. But listen, this entry is not required. Why? Because new partner कुछ लाया ही नहीं गुडविल के लिए, तो ये वाली एंट्री होगी नहीं. ये एंट्री किस अमाउंट से होगी? नील अमाउंट से होगी, और नील से तो हमको कोई एंट्री करने की जरूरत होती ही नहीं. जब हमारा नया पार्टनर गुडविल के लिए कुछ लाया ही नहीं, तो ये एंट्री हम नहीं करेंगे. इस एंट्री को करने की जरूरत नहीं है. तो इस केस में आपकी सिर्फ एक ही जर्नल एंट्री बनती है, दैट इज गुडविल टू ओल्ड पार्टनर्स, व्हिच इज इन सैक्रिफाइसिंग रेशियो. क्लियर? बैंक टू गुडविल की एंट्री आपकी नहीं बनती, क्योंकि नया पार्टनर कुछ लाया ही नहीं एज ए गुडविल. सो बच्चों देखो, ए और बी पार्टनर्स हैं, शेयर करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस 3:2 में. सी को एडमिट किया गया और नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:1 हो गया. सी क्या कर रहा है कि 1 लाख तो ला रहा है एज इज कैपिटल, लेकिन अनेबल टू ब्रिंग, अपना गुडविल का शेयर लाने में वो अनेबल है.
तो इसको हम रिवैल्यूएशन मेथड से सॉल्व करने वाले हैं। देखिए पहली एंट्री क्या होगी, सारा क्वेश्चन सेम है प्रीमियम मेथड की तरह, बस इसमें एक वर्ड जुड़ गया है अनेबल, वहां पर एबल था। बैंक अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल अकाउंट, दैट इज 1 लाख। 1 लाख लाया वो अपने कैपिटल की तरह, अपना कैपिटल 1 लाख को लेकर आया है। सेकेंड एंट्री क्या थी, बैंक अकाउंट डेबिट टू गुडविल। बच्चों वो लाया ही नहीं, नील है ये। देखो अब ये एंट्री करने की आपको जरूरत नहीं है एग्जाम में, ये एंट्री आपको करने की जरूरत नहीं है, ये मैंने सिर्फ समझाने के लिए ही बताई है। ये एंट्री आपको नहीं करनी अपने एग्जाम में, ओके। प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट टू बीज कैपिटल अकाउंट। जो प्रीवियस इलिस्ट्रेशन में अमाउंट्स आए थे वही आ जाएंगे, 40,000, 24,000 एंड 16,000। ये एंट्री आपकी सैक्रिफाइसिंग रेशियो से होगी। ये हम पिछली इलिस्ट्रेशन में हमने सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकाल लिया था, जो कि हमारा आया था 3:2। Now come to the last method, memorandum revaluation method. But this is not the end of goodwill. Goodwill के अभी हम बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे, ढेरों क्वेश्चन करेंगे, ओके। This method also applies when new partner does not bring his share of goodwill। इसमें भी इनकमिंग पार्टनर अपना शेयर गुडविल का नहीं ला पाता। द जनरल एंट्रीज आर प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन ओल्ड रेशियो। All partners capital account debit to premium for goodwill account. This entry we do in new ratio. नाउ अब बात आती है कि हम मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट में किस अमाउंट से एंट्री करें। क्या फर्म की टोटल अमाउंट से एंट्री करें या जो नया पार्टनर आया है, जो न्यू पार्टनर आया है उसके अमाउंट से एंट्री करें।
आप किसी भी अमाउंट से एंट्री कर सकते हैं, अमाउंट डिफरेंट आएगा, लेकिन दोनों ही केस में आपका आंसर राइट होगा। इसके लिए एक इलिस्ट्रेशन करते हैं, देखिए। मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन मेथड। आपके पास दो तरीके हैं, अभी मैंने आपको बताया। गुडविल अकाउंट विद अमाउंट ऑफ न्यू पार्टनर। गुडविल अकाउंट विद अमाउंट ऑफ फर्म्स वैल्यू ऑफ गुडविल। देखिए, पहले वाले ही इलिस्ट्रेशन ले रहे हैं। प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट, टू A's capital account to B's capital account। ये आपका था 40,000। इसको आप ओल्ड रेशो में बांट देंगे। जो आपका पहला था कितना आया था 24,000 एंड 16,000। इसको आप ओल्ड रेशो में बांटेंगे, ठीक है। ओल्ड रेशो में आपका ये बच जाएगा। नेक्स्ट है कैपिटल अकाउंट डेबिट बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल। The amount are 20,000, 13,333 and 6,667। It again become 40,000। इसको हम न्यू रेशियो में करेंगे। What is new ratio? न्यू रेशियो आपका था 3:2:1, ठीक है। ये तो हो गया न्यू पार्टनर के अमाउंट से। देख लीजिए, नोट कर लीजिए। चलिए जी, नोट हो गया। हम देखते हैं इस वाले पोर्शन को, गुडविल अकाउंट विद अमाउंट ऑफ फर्म्स वैल्यू ऑफ गुडविल, ठीक है। इसमें आपको क्या करना पड़ेगा, पहले फर्म की टोटल गुडविल निकालकर उसको राइट ऑफ करना होगा। सी का शेयर कितना था 1/6 और वो कितना ला रहा था 40,000। फर्म्स गुडविल कितनी हो जाएगी
40,000 into 6, that is 2,40,000। अब आप एंट्री कीजिए, पहले गुडविल को राइट ऑफ करना होगा। गुडविल अकाउंट डेबिट टू A's कैपिटल अकाउंट टू B's कैपिटल अकाउंट। ये आपके ओल्ड रेशियो में होगा, ठीक है, ओल्ड रेशियो में होगा। कितना हो जाएगा ये? 2,40,000। लेट मी कैलकुलेट। It comes 1,44,000 and it is 96,000 in old ratio. Okay, and then A's capital account debit B's capital account debit C's capital account debit। टू गुडविल। गुडविल आपका कितना है? 2,40,000। अब इसको न्यू रेशियो में बांट दो। न्यू रेशियो कितना था आपका? 3:1। ये आपका ओल्ड रेशियो 3:2 था, न्यू रेशियो था 3:2:1। ये आपका न्यू रेशियो है। तो ये आ जाएगा 40,000, 80,000 and 1,20,000। The crux is to credit the old partners capital account with the amount of goodwill in sacrificing ratio। देखिए प्रीमियम मेथड में भी आपने क्या किया? सैक्रिफाइसिंग रेशियो में गुडविल को बांटा, रिवैल्यूएशन में भी आपने सैक्रिफाइसिंग रेशियो में गुडविल को बांटा, मेमोरेंडम में भी आपने सैक्रिफाइसिंग में। सैक्रिफाइसिंग कैसे? देखो ना, यहाँ पर ओल्ड पार्टनर्स क्या हो रहे हैं? क्रेडिट। यहाँ पर ओल्ड पार्टनर्स क्या हो रहे हैं? सॉरी, ओल्ड पार्टनर्स क्या हो रहे हैं? डेबिट। तो ओल्ड माइनस न्यू क्या होता है? जरा बताओ, ओल्ड माइनस न्यू क्या होता है? सैक्रिफाइसिंग ही तो होता है। सैक्रिफाइसिंग अमाउंट से ही हमने सैक्रिफाइसिंग अमाउंट ही निकल कर आया है। अल्टीमेट इंपैक्ट जो पड़ेगा वो सैक्रिफाइसिंग अमाउंट का ही पड़ेगा, ठीक है। सेम इसमें भी जो अल्टीमेट इंपैक्ट पड़ेगा वो सैक्रिफाइसिंग अमाउंट का ही पड़ेगा। यहाँ अमाउंट सेम है। अच्छा, यहाँ अमाउंट अलग है। देखो ना, अमाउंट की बात नहीं होती है, देखो बात होती है रेशियो की। रेशियो की बात होती है। अगर आप क्या करो, कैलकुलेट करते हैं इसको। अगर आपको 24,000 24,000
और 16,000 का रेशियो निकालो तो ये आने वाला है 1:5:1। ठीक है, सेम इधर भी आएगा। अब इधर क्या है, आपने इसको क्या किया था, इम्पैक्ट कितने का पड़ रहा है 4,000 का, 24 और 4 20, 24 में से 20 गए 4,000, 16,000 में से 13,333 को माइनस करो। 16,000 माइनस 13,000 it comes to 2667। जब हम डिवाइड करेंगे इनको तो it comes around 1.499:1, which is approximately equals to 1:5, क्योंकि 33 पैसे हमने कम किए थे ना वहां पे। अगेन जब हम इसका इंपैक्ट निकालेंगे तो ये क्या आएगा, 24,000 1,44,000 minus 1,20,000 which comes 24,000, 96 16,000। इसका तो हमने पहले निकाला ही हुआ है 1:1। तो अल्टीमेट जो इम्पैक्ट है वो क्या है कि आपको ओल्ड पार्टनर्स के कैपिटल अमाउंट को क्रेडिट करना है सैक्रिफाइसिंग रेशियो में। आपको जो अल्टीमेट इम्पैक्ट क्या दिखाना है कि गुडविल के अमाउंट को सैक्रिफाइसिंग रेशियो में क्रेडिट करवा दो ओल्ड पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में। ये इसका अल्टीमेट इम्पैक्ट पड़ता है, चाहे आप किसी भी मेथड से निकालो, रेशियो आपका सेम ही आना है। ठीक है।